Good morning everyone. Today we have to start topic 5, death of partner. Question number 1, page number 188. Rekha, Menka, Mukta were partners in business, sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019. So this is the balance sheet, liability side and asset side. After that, adjustment are there. Mukta died on 1st July 2019. So this date is also important, that Mukta's death arises on 1st July 2019. उसके बाद एडजस्टमेंट है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रिवैल्यूड टू ₹70,000 एंड RDD इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000. सो यहाँ पे एडजस्टमेंट मार्क करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट नंबर 1, एट द सेम टाइम डेटर्स को एडजस्टमेंट नंबर 1. उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, द ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ और डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000. मतलब मुक्ता का डेथ अराइज होने के पहले उन्होंने 10,000 विड्रॉ किया था फॉर हर पर्सनल यूज़, दैट इज़ ड्राइंग. सो एडजस्टमेंट इफेक्ट होगा, बैंक को होगा एडजस्टमेंट नंबर 2. आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹1,000. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अफेक्ट होगा, ₹1,000. After that, adjustment number 4 and adjustment number 5, here we have to calculate goodwill. Okay, and after that, the deceased partner's share of profit up to the date of her death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years, that is third and fourth years. मतलब profit जो भी है after the death arises, that profit we have to calculate. And here, adjustment number 4, we have to calculate goodwill. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the continuing firm, giving working note of profit of goodwill. So here importance is also given for working note. So student, you have to note that working note is also important. Now we have to solve this question. See, in the books of partnership firm, profit and loss adjustment account, here debit side and credit side. After that, partners capital account, debit side we have to record and credit side record. Okay, and after that we have to prepare balance sheet as on 1st July 2019. Now we have to start here. See, first liability side, पहले liability side करेंगे, उसके बाद asset side करेंगे. So liability side, here capital accounts are there, Rekha, Menka and Mukta. So तीनों के capital accounts है, that capital account we transfer to partners capital account by balance brought down. यहाँ पे रेखा का है 60,000, so we have to write here 60,000 रेखा column. After that Menka 70,000, so here we have to write 70,000 by balance brought down. And after that Mukta 34,000, so by balance brought down Mukta's column 34,000. After that creditors are given, creditors 18,000, bills payable 2,000, that both we have to record balance sheet, liability side, creditors 18,000 and bills payable 2,000. After that general reserve is given, general reserve 16,000, that 16,000 general reserve we have to transfer to partners capital account credit side by general reserve. And ratio is given, already ratio कितना दिया है, ratio दिया है 2:1:1, means it is distributed among all partners. all partners कितना general reserve दिया है, general reserve दिया है 16,000. okay, so Rekha, here we have to write their ratio 2:1:1. So Rekha का जाएगा 16,000 divided by 2/4. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So 4 4 4 जा 16. So
8,000, रेखा का आएगा 8,000। फिर नेक्स्ट मेनका 16,000 इंटू 1/4, सो आएगा 4,000। सेम वे मुक्ता का भी रेशो 1 है तो मुक्ता का भी आएगा 4,000। सो बाय जनरल रिजर्व 8,000, रेखा's column, then Menka's column 4,000 and Mukta's column 4,000. So here liability side is completed. Then come to the asset side, plant and machinery given. So we have to record plant and machinery here 60,000, asset side 60,000. Adjustment is there that plant and machinery was to be revalued at rupees 70,000. यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे 70,000 है, मतलब वैल्यू बढ़ गया। जो एडजस्टमेंट का वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 70,000। तो 70,000 माइनस 60,000 10,000, दैट इज व्हाट एप्रिसिएशन, मतलब इंक्रीज हो गई वैल्यू 10,000 से। सो एसेट इंक्रीज, सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, credit side by plant and machinery account 10,000 because asset increase. At the same time debtors is given RDD. RDD is to be created of rupees 2,000. वो फर्स्ट एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट करेंगे। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया है 2,000। दिस इज ऑल्सो लॉस। सो डेटर्स से क्या होगा, लेस होगा। हियर डेटर्स एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखा है हम लोगों ने। सो डेटर्स 50,000, एसेट साइड वी हैव टू रिकॉर्ड डेटर्स 50,000 लेस RDD 2,000, सो आउटर कॉलम 48,000। और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में टू RDD अकाउंट 2,000। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, देन फर्नीचर इज गिवन, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स ओवर, then furniture 30,000, no adjustment, so directly record asset side furniture 30,000. After that bank is given, bank 60,000, bank is, this is also asset, so we have to record bank 60,000 और एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखा। एडजस्टमेंट क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट, द ड्रॉइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000, मतलब मुक्ता ने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 निकाला है। सो 10,000 ड्राइंग इज देयर, सो ड्राइंग का इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट 10,000, बिकॉज मुक्ता ने बिजनेस से पैसे खुद के यूज़ के लिए निकाला है। सो टू ड्राइंग 10,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, बैंक में 60,000 माइनस 10,000, सो 50,000। फिर ऐसे आएगा क्योंकि अगर सपोज डेथ होता है पार्टनर्स का और उसने विड्रॉ किया है पैसा, तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब मुक्ताज डेथ अराइजेस नो, सो मुक्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू drawings account 10,000, okay. And another effect, drawings बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों बैंक लिखा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000, क्योंकि एसेट साइड में बैंक यहाँ पे 60,000 दिया है। सो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल मुक्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ड्राइंग अकाउंट, सो टू ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में आ गया 10,000। एंड अनदर इफेक्ट हियर दैट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पार्टनरशिप फॉर्म का एंट्री रहेगा क्योंकि बिजनेस से पैसा खुद के यूज़ के लिए निकाला है। सो इसीलिए बैंक से 10,000 लेस हो गया क्योंकि उसका डेथ अराइज हुआ है इसीलिए। सो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 50,000। सो सेकेंड एडजस्टमेंट इज ओवर। आफ्टर दैट थर्ड एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज़ 1,000।
सो ड्राइंग के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा. सो एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि मुक्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000. और सेकेंड इफेक्ट जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, उसमें से वो माइनस हो जाएगा. ठीक है. सो सेकेंड इफेक्ट इसका थर्ड एडजस्टमेंट का बाकी है. आफ्टर दैट फोर्थ एडजस्टमेंट, her share of goodwill should be calculated at 3 years purchases of profit for last 4 years, which were first year प्रॉफिट है 1,50,000, सेकेंड ईयर है 1,30,000, थर्ड ईयर है 70,000 एंड फोर्थ ईयर है 50,000. तो ये एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. ओके. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा. सो हियर पहले रेशो लिखेंगे. रेशो पार्टनर्स का रेशो कितना है 2:1:1. सो यहाँ पे रेशो हम लोग ने लिखा. सो एडजस्टमेंट नंबर 4 दिस इज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे कि फर्स्ट ईयर का देखो दिया है, फर्स्ट ईयर 1,50,000. सो वी हैव टू रिकॉर्ड हियर 1,50,000. आफ्टर दैट सेकेंड ईयर 1,30,000. देन third year here 70,000 and fourth year 50,000. So we have to write here 4 years divided by number of years 4. Okay, one first year, second year, third year and fourth year. So 4,000 total आ गया divided by 4, 1 lakh amount. फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस कितना है एडजस्टमेंट में 3 years. सो इंटू 3 किया 1 लाख इंटू 3. सो आता है 3 लाख. फिर अभी मुक्ता का शेयर कितना है, देखो रेशो है, ये रेखा का 2 है रेशो, मेनका का 1 है और मुक्ता का 1 है. सो गुडविल मुक्ता शेयर इन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, 3 लाख जो आया है यहाँ पे, 3 लाख जो यहाँ पे आया है, ये 3 लाख लिया इंटू 1/4, क्योंकि मुक्ता का शेयर कितना है 1. सो 1/4 तो आता है 75,000. दिस इज व्हाट गुडविल. सो भी ये गुडविल का एंट्री कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय गुडविल, क्योंकि एंट्री क्या आ गई गुडविल अकाउंट डेबिट. एंट्री व्हाट गुडविल अकाउंट डेबिट. एंट्री देखो गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000 टू किसका है, मुक्ताज का है, क्योंकि मुक्ताज का डेथ अराइज हुआ है. कैपिटल अकाउंट 75,000. सो एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाय गुडविल 75,000. और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, बाकी गुडविल का कुछ दिया नहीं है. सो गुडविल अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट में क्रिएट करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट. सो डेबिट साइड एंड दिस इज व्हाट क्रेडिट साइड. सो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 75,000. और बाद में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000. सो डेबिट साइड 75,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है. सो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउन लिखा है, देखो बाय बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75,000. तो ये 75,000 का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. सो गुडविल हियर 75. गुडविल का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ गया, बैलेंस शीट एसेट साइड गुडविल 75,000. ओके. सो दिस एडजस्टमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो completed. Then fifth adjustment, the deceased partner's share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. Last 2 years मतलब थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. इसका प्रॉफिट डिपेंड है. इसका मुक्ता का प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द ईयर 2 years, that is last 2 years, that is third year and fourth year. थर्ड ईयर का 70,000 और फोर्थ ईयर का है 50,000. अगेन वी हैव टू here create working note calculation of share of profit. So profit of current year is equal to average profit of last year. So current year का profit हमें निकालना है. So
थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दिया है। थर्ड ईयर का 70,000 है और फोर्थ ईयर का, ये थर्ड ईयर का 70,000 है और फोर्थ ईयर का 50,000। सो 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, इसका दोनों का टोटल आता है 1,20,000 अपॉन 2, तो आता है 60,000। अभी देखना है कि प्रॉफिट फॉर पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 1 जुलाई 2019। ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, और मुक्ता का डेथ कब अराइज हुआ है? 1 जुलाई को। यहाँ पे है एडजस्टमेंट, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019, मीन्स 3 मंथ्स का हमें निकालना पड़ेगा। कैसे 3 मंथ्स है? अप्रैल, मई और जून। 30 जून, क्योंकि ये 1 जुलाई तो जुलाई नहीं आएगा, तो 3 मंथ्स। सो दिस 60,000 इंटू 3/12 आता है 15,000। मुक्ता ये फुल पीरियड आता है, अमाउंट 15,000। लेकिन अभी मुक्ता का शेयर करेंगे। मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस 15,000 इंटू, रेशो क्या है मुक्ता का? 1 है, सो 1/4, तो आता है अमाउंट 3750। दैट 3750 वी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो सेटलमेंट करने के लिए ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। जैसे कि ये एडजस्टमेंट है, दिस इज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे एडजस्टमेंट रहेगा, तो ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सो प्रॉफिट है, इसीलिए इसका इफेक्ट देखो कहाँ पे आ गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3750, ये हो गया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? जैसे कि ये थर्ड एडजस्टमेंट हमारा बाकी था, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1000। सो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट में 3750 यहाँ पे लिखा है -1000, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2750, क्योंकि उसने 10,000 यहाँ पे विड्रॉ किया था, ये 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट दिया है। सो ड्राइंग, बिजनेस से पैसा खुद के यूज़ के लिए लिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग। बिजनेस ने पैसा मुक्ता को दिया था, लेकिन बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो ये एक इफेक्ट आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000, और वो इंटरेस्ट किस माध्यम से लेंगे? जो भी उसको मुक्ता का शेयर इन प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट से लेस करके 1000 इंटरेस्ट बिजनेस लेगा, वो लेस करके अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 2750। ओके, सो दिस थर्ड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सो ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल एडजस्टमेंट्स आर हियर कंप्लीटेड। वो देखना है कि सब एडजस्टमेंट के ऊपर टिक है कि नहीं, सब टर्म्स के ऊपर टिक है कि नहीं, वो देखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू डू द टोटल। सो अभी टोटल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड 10,000 और डेबिट साइड कितना है? खाली 2,000, मतलब 10,000 माइनस 2,000 8,000। सो 8,000 ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। सो इनका रेशियो ऑलरेडी दिया है 2:1:1। सो रेखा का कैसे आएगा? रेखा का शेयर आएगा, रेखा शेयर 8,000 इंटू 2/4, 4 8 2, 2,000। सो रेखा का 4,000। फिर मेनका का ऑलरेडी 1/4 है, सो 8,000 इंटू 1/4 तो आता है 2,000। सेम वे मुक्ता का भी आएगा 2,000, क्योंकि उसका रेशियो है 1/4। सो 4,000 रेखा, मेनका 2,000 एंड मुक्ता 2,000, आउटर कॉलम 8,000। टोटल करेंगे यहाँ पे। फिर दैट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट के 4,000 रेखा, 2,000 मेनका एंड मुक्ता 2,000। इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे। देखो मुक्ता का टोटल कितना है? चारों टर्म्स A1 2 3 4 5 अमाउंट ऐड करेंगे तो टोटल आता है 1,18,750।
So this credit total minus this two amount 10,000 plus 11,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 1,07,750। अगर डिसीज डेथ पार्टनर का अराइज होता है तो उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,07,750। और ये लोन कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,07,750। फिर मेनका का टोटल करेंगे। मेनका का टोटल, तीनों का टोटल आता है 76,000। सो 76,000 यहाँ पे लिखा, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। फिर रेखा का करेंगे। रेखा का तीनों का टोटल आता है 72,000। सो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये क्या है? टू बैलेंस कैरिड डाउन 72,000। ओके, सो 72,000 एंड 76,000। उसके बाद ये पूरा सब टोटल किया एंड आफ्टर दैट दिस बैलेंसेस, कैपिटल बैलेंसेस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स। रेखा 72,000, मेनका 76,000, तो आ गया अमाउंट 1,48,000। ओके, अभी उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। लाइबिलिटी साइड का ये चारों अमाउंट मिला के आता है 2,75,750। सेम वे एसेट साइड का भी टोटल आता है, सब अमाउंट ऐड करेंगे तो 2,75,750। सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर notebook. Okay, and in this question here printing mistake is there. बैलेंस शीट में यहाँ पे मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट लिखा था, तो क्या आएगा? मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट दिया है। सो इन दिस क्वेश्चन दैट वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल एंड हियर we have to calculate profit, and that profit transfer to profit and loss suspense account. You have to solve this question in your notebook.